Hope everybody is doing well. Now we are doing series of videos related to the preparation strategy of UPSC examination. Now this is on Sunday we discussed about how do we start the preparation for beginners. आज का जो objective है that is to focus on the prelims 2020. Now we all know that prelims 2020 examination was supposed to happen on 31st of May. 31st May को defined था and that date has been postponed. New date has not been announced. क्या date होने वाली है, वो कब आएगा? There are a lot of confusion and uncertainty that students are going through. Now, UPSC examination, especially civil services, is very different from others. And why it is different? That you invest almost 2 years of your life, and then you go give the examination. और जब एग्जाम देते हो, prelims का या mains का या interview जो भी देते हो, it requires hell of a effort and planning and inputs, and then you reach that level. Now there are certain questions which is always there in the student's mind. और वो questions क्या हो सकते हैं? So let's take one by one. The first question would be, what would be the date of the exam? Prelims as well as mains. मैं exam को holistically देखता हूँ, तो मैं सिर्फ prelims की बात नहीं करता हूँ. I also talk about mains because prelims examination was supposed to happen on 31st of May and mains on 20th of September. Now, as we speak today, the chances are there that even the mains examination will go ahead. वही जो है postpone होने का chance है. Now, 31st May was the prelims which is postponed. Now, what is UPSC's notification? UPSC का notification क्या आया है? UPSC का notification आया है that we are going to announce the new date on 20th of May, and at least 30 days of notice will be given. यानी अगर 20th of May को भी अगर वो date exam को बताते हैं, so at least 30 days के बाद का date देंगे. Which means if I visit today, the earliest possibility of exam is maybe 21st of June. यानी उससे पहले एग्जाम किसी भी हाल में नहीं हो सकता. That is almost 1.5 months from today. So that is the first question कि prelims का एग्जाम कब होने वाला है, what is the date, mains भी आगे जा सकता है. The second question is that can it go online? क्या मेरे centers वही रहेंगे या change हो सकते हैं? क्या वो चेंज होंगे या क्या होने वाला है? There is a lot of confusion. Can it go online? That is another question because many of the examinations do happen online. We have a CAT examination for MBA entrances. We have a NEET examination which can also happen online. But what about UPSC examination? Because UPSC is about pen and paper. Right from the beginning, आज भी जो है pen and paper का ही exam है. The third question is that how do I overcome the tiredness or fatigue that we are witnessing in the lockdown? ये lockdown है या फिर movement restricted है. So एक तरह से आप कह सकते हो there is a weariness, एक tiredness है, एक fatigue है, mental fatigue है. There is a kind of a psychological pressure in each one of us. We are not able to give our best. Though it is more mental, but that situation is there. How do we handle that? That will be the third issue I'll be discussing. The fourth issue would be that what should be the strategy for prelims? Prelims का strategy क्या होना चाहिए? How should we change my approach? Should I go for optional? Should I prepare for mains examination? And even if I prepare for these areas, how should we do about that? तो ये सारे सवाल भी आपके दिमाग में जहन में आ रहे होंगे. Now here this part will be covered in two areas. Once अगर आप prelims का area cover करते हैं तो उसको कैसे cover करें? And if you're covering the mains area, an optional area, so how do we do that? So I'll share some of my experience, and I would expect students to use their own common sense, and of course every student is different. They have their own strategy, study plan. So I'm just telling a common approach, and I believe that you all will be able to change it or maybe bring change in your own study routine based on the inputs that I have, because I have experience of be mentoring students over the years. Now coming to the first part of the video, date of the examination. If you ask me frankly, I don't see the exam will happen anytime even in the earlier of July. At the max, मेरा मानना है कि जुलाई में तो minimum earliest possibility would be probably mid of July or end of July. So that is the earliest possibility only if things go normal, which do not seem normal today. The number of cases in past few days have gone up like anything. आज average 4,000 cases जो है COVID के आ रहे हैं. Yesterday more than around almost 200 deaths were reported across India. So that is a extreme problem and concern. Though government has kind of eased down the lockdown in many areas, the green zones have been there, the orange zones are there, but the economic centers of India are in the red zones.
द बिगेस्ट एस्पिरेंट ऑफ प्रिपरेशन जो बच्चे हैं वो रेड जोन में बैठे हैं. दिल्ली इज, आई एम सिटिंग इन दिल्ली टुडे एंड दिस इज द रेड zone area, and here we thousands of people give in Delhi. So it's in the case of Lucknow or in Chennai or in Hyderabad or maybe in Ahmedabad, across India, Jaipur, all these are the red zones. So it is, तो यहाँ पे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आके तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं. सो अनलेस अंटिल थिंग्स आर नॉर्मल हियर, द चांस ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी देयर. तो हमें यूपीएससी इज इंक्लूसिव एग्जामिनेशन. इट्स एग्जामिनेशन जो ये चाहेगा कि अक्रॉस इंडिया सब लोग एग्जाम दे पाए, और ये एग्जामिनेशन सब लोग अगर देंगे तो दे हैव टू इंश्योर दैट एवरीबडी इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे स्टे इन इंडिया, दे शुड बी एबल टू रीच आउट टू देयर सेंटर्स. अगर आप मान लीजिए एक छोटे सिटी में रहते हैं और आप अपने सेंटर जाना चाहते हो, यू माइट हैव टू टेक अ बस और मे बी ट्रेन और maybe cab or anything. You might have to stay in a hotel, और फिर आप वहाँ एग्जाम दोगे. So there are a lot of concerns are there. Security concerns हैं, there are health concerns are there, and hence all these things have to be taken into consideration. और तभी एग्जाम दे पाओगे जब ये सारे कंसिडरेशन आपके एड्रेस होंगे. सो यूपीएससी विल वेरी कॉशियस ऑन दैट. नीट का एग्जाम आया, डेट एग्जाम अनाउंस हो गई 26 ऑफ जुलाई. बट रिमेंबर, नीट एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट एग्जामिनेशन. नीट एग्जामिनेशन मेनली फोकसेस ऑन एडमिशंस इन द करंट ईयर. जो करंट ईयर में एडमिशंस होने वाले हैं उनके लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में. सो इफ द एग्जाम डू नॉट हैपन, द चांसेस ऑफ द एडमिशन साइकिल विल अगेन बी डिसरप्टेड. तो एडमिशन तो होनी ही है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट जुलाई में एग्जाम होगा, सो प्रॉब्ली सितंबर में उनका सेशन स्टार्ट होगा. सो दे हैव टू इंश्योर, यूपीएससी के पास ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है दैट दे हैव टू इंश्योर कि सेशन स्टार्ट हो. इफ आई गिव एन एग्जांपल, 2015 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम था दैट वाज इन अगस्त, एंड अगर वो अगस्त में था तो इस बार भी अगर जुलाई अगस्त में चला जाए तो यूपीएससी के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा. दे विल जस्ट साइकिल थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा. इन पास्ट 4-5 years यूपीएससी हैज बीन ट्राइंग कि साइकिल शिफ्ट होके हम लोग वी मूव टू अ साइकिल ऑफ मे टू अप्रैल. पूरे साल में मई में प्रीलिम्स होगा, मेंस आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, एंड फाइनल रिजल्ट विल बी बाय अप्रैल. तो ये एक्सपेक्टेशन था साइकिल का जो यूपीएससी चाह रहा था, एंड वी वर ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक. नाउ रिमेंबर, यूपीएससी इज अबाउट सर्टेनिटी. सो व्हेन द डेट चेंजेस इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन. और ये कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा, कंफ्यूजन चल रही होगी. तो एग्जाम का डेट कब होगा हमें नहीं पता, बट व्हाट, सो आप मान के चलिए दैट यू हैव 2 months फ्रॉम टुडे. आपके पास आज से 2 महीने हैं. बट अगेन वी विल नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और हम 2 महीने का स्टडी प्लान नहीं बनाएंगे. आई विल जस्ट टॉक अबाउट 1 month स्टडी प्लान. इवन इफ द एग्जामिनेशन गोज इन मिड ऑफ जुलाई, जो आज से मे बी 2 month के बाद है, और बिगिनिंग ऑफ जुलाई अगेन, दैट इज आफ्टर ऑलमोस्ट 2 months. So let's take it into consideration that 2 months का हमारे पास स्पेस रहेगा, and my study plan should focus on 1 month approach. हमारा 1 month का जो स्टडी प्लान अप्रोच होगा उस पर हम काम करेंगे. Let's not move ahead of ourselves, और स्टेप बाय स्टेप होगा. आफ्टर 20th यूपीएससी जब न्यू डेट अनाउंस करेगा, so we can extend that study plan. अभी के लिए एक महीने का स्टडी प्लान जो है होना चाहिए. तो पहला तो ये एस्पेक्ट है. दूसरा है, एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है, दैट इज अनदर कंसर्न. बट रिमेंबर, अगर ऑनलाइन होगा भी, यूपीएससी के पास एक अपने आप में टेक्नोलॉजिकल एक लेवल पे एफर्ट करना होगा. क्वेश्चन बैंक्स हैव टू बी क्रिएटेड. एग्जाम एक दिन में नहीं होगा, इट विल बी कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कैट एग्जाम होता है. सो यूपीएससी विल बी कंसर्न्ड. अगर आई पर्सनली फील दैट यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम ऑनलाइन, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, बट इन अ वर्स्ट सिचुएशन अगर ये होता भी है तो दैट विल अगेन इट विल रिक्वायर अ वेरी लॉजिस्टिकल एफर्ट फ्रॉम यूपीएससी, विच इज नॉट समथिंग जो कि मुझे लगता है जल्दी होने वाला है. अगर होता भी है तो आई बिलीव इट विल टेक सम टाइम. सो लेट्स नॉट, बिकॉज अगर ऑनलाइन होगा भी तो वी हैव ऑल द ऑप्शन, वी कैन गिव ऑनलाइन एज वेल. बट फोकस हियर इज दैट एग्जाम कब होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट 2 months. वी हैव 2 months अराउंड टुडे. 1 month आपका जो स्टडी प्लान चेंज होना चाहिए, स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, और उसमें आप नई स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो. सो ये एक एस्पेक्ट है. जो तीसरा एस्पेक्ट जो मैं बात कर रहा था कि व्हाट अबाउट द मेंटल फटीग. ये लॉकडाउन वेरियनेस चल रहा है जो psychologically it is very draining, taxing, it is mentally draining. We are not able to maintain the mental composure. Students call me and they tell me, sir, I'm not able to concentrate. My study, I'm not able to push my limit. I'm not able to study for 10 hours or 8 hours. Again, there are a lot of things are there. A lot of students are preparing for almost 2 years, so they have reached the threshold of preparation. They are at good level of their preparation. So when they reach a good level, naturally, doing revision again, there is an uncertainty at the back of your mind. So this is always there.
इनफैक्ट ये अनसर्टेनिटी जब प्रीलिम्स का एग्जाम आप दे लेते हो तभी भी आता है, टिल द टाइम जब मेंस का रिजल्ट नहीं आता है. सो जस्ट सिचुएशन, जस्ट मे बी टेक इट दैट ये एक उसी तरह का सिचुएशन है वेर यू डोंट नो दैट व्हेन विल दिस बी ओवर. सो अभी हमारे एंड पे जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इस मेंटल फटीग को कैसे ओवरकम करें. हाउ डू वी चेंज थिंग्स, बिकॉज ये साइकोलॉजिकली टैक्सिंग है, आप बाहर नहीं जा सकते हो. Uncertainty is there. As I mentioned, UPSC is about certainty. तो अगर एग्जाम का डेट क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, so you do not have the urge and drive, that intrinsic urge and drive to put effort, put your plan, on place. ये सब चीजें उतने इफेक्टिवली नहीं हो पाती हैं. तो एक कॉमन कंसर्न एक ये भी देखने को मिलता है. So what should we do? क्या करना चाहिए? What should be the way forward? Let's try and understand. How can you overcome ये जो psychologically चीजें चल रही हैं? First of all, एस्पिरेंट इज ऑलवेज इन लॉकडाउन. रिमेंबर, एक सीरियस एस्पिरेंट हमेशा पढ़ाई के मोड में रहेगा, एंड फॉर हिम और हर थिंग्स विल नॉट चेंज. यस, यू हैव फ्रीडम, यू कैन मूव आउट, यू कैन गो आउट, ये सारे फ्रीडम नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं. बट वंस यू नो प्रिपरेशन साइकिल, द चांसेस ऑफ द नॉर्मल फ्रीडम इज नॉट देयर, एंड हेंस आई वुड जस्ट कंसिडर इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस. तो अभी इस लॉकडाउन में आप क्या कर सकते हैं? आपका मोमेंटम नहीं बन रहा है. What you can do here at this point of time is that try to look ways in which you can bring more comfort to your study process. क्या कर सकते हो? Change your routine. Follow a different kind of study schedule. Change your study hours if required. बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं यूपीएससी के, दे स्टडी लेट नाइट. एज एन अगर मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा आप लेट नाइट मत पढ़ो. मे बी पुट अ लिमिट टू लेट नाइट में. आप 12 बजे तक आप लिमिट लगा दो, 11 बजे तक लिमिट लगा दो. डोंट स्ट्रेच ओवर नाइट्स. निशाचर मत बनो, रात भर मत पढ़ो. दैट इज नॉट एडवाइजेबल राइट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट विल इम्पैक्ट योर स्टडी साइकिल, योर बॉडी साइकिल, बॉडी क्लॉक, सब इम्पैक्ट होगा. अभी आप फोकस करो, ट्राई टू मेक अ रूटीन, अ बेसिक डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश करो. एंड दैट डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स एवरीथिंग. दैट इन डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना. आई नो इट इज नॉट ईजी, बिकॉज एस्पिरेंट्स फ्री मोड में काम करना चाहते हैं. दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर. पेरेंट्स के साथ अगर बच्चे हैं तो उनको और दिक्कत होती है, बिकॉज पेरेंट्स टेंड टू आस्क देम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. I personally believe that UPSC aspirants should be left alone. I would urge the guardians and parents that you just motivate them in whatever they are doing it. Let them do it in their own way. They're not small kids. They can do, they understand the seriousness of this process. तो अभी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ये होगा कि हम कैसे अपने रूटीन को चेंज करें. फॉर एग्जाम्पल, आपने डिफाइन कर दिया कि आई विल गेट अप मे बी 6 in the morning or 7 in the morning or 8 in the morning. I'm at the max I will sleep at 12. Try to change that routine. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. और डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करिए. सोने का, खाने का टाइम अगर आप फिक्स कर लेंगे तो एक रूटीन डेवलप हो जाएगा. एंड यू कैन फॉलो दिस रूटीन ओनली फॉर 6 days. 7 days आप ब्रेक लीजिए, आप हाफ डे मत पढ़ाई करिए. Then at the same time juggle up with new things. For example, watch a movie for a change. You can read something new extra. जो नॉर्मल एकेडमिक कुछ लोग अगर रीड करना पसंद करते हैं, so you can read something outside and extra and different. For example, you can read maybe a magazine, maybe a non-fiction novel, a non-fiction book. कोशिश करिए कि जो भी आप पढ़िएगा वो यूपीएससी एकेडमिक से कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़ा हो. You can read a book on international relations. You can book maybe book on economics, philosophy, anything. And that should not be more than 1 hour. 1 घंटे में आप एक चेंज आप ला सकते हैं अपने इसमें. कुछ कई बार मेंस की किताब भी होती हैं जो अच्छी किताब होती हैं, हिस्ट्री की या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की, जो आपने नहीं पढ़ी है. तो फॉर अ चेंज यू कैन रीड दोज बुक्स एज वेल विदाउट पुटिंग अ प्रेशर दैट आपको मेमोराइज करना है, आपको फैक्ट बनाना है, आपको नोट बनाना है. यू आर जस्ट डूइंग अ लेजर रीडिंग. आप नॉर्मल रीडिंग कर रहे हो एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिजुविनेट योरसेल्फ. एक आप काम ये कर सकते हो. दूसरा, यू कैन वॉच अ मूवी. यू कैन आप गाना सुन सकते हो. यू कैन डांस एज वेल. ठीक है, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है. सो आई वुड एक्सपेक्ट दैट इफ यू कैन डू सम बेसिक एक्सरसाइज, मे बी योगा. आई डोंट नो वेदर यू फॉलो. मुश्किल होता है, सारे बच्चे नहीं करते हैं, बट अगर आप कर सकते हो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी. यू कैन ऑल्सो डू सम मेडिटेशन. सम पीपल डू, सम एस्पिरेंट्स करते हैं. अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है. यू कैन डांस, यू कैन मेक अ सॉन्ग एंड यू कैन डांस इफ यू वांट टू, जस्ट टू रिजुविनेट योरसेल्फ, चेंज द रूटीन. और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज योर डाइट. डाइट इज द की फॉर प्रिपरेशन. एस्पिरेंट्स को लगता है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी नहीं खा सकते हैं. नहीं, यू कैन नॉट टेक द डाइट फॉर ग्रांटेड. डाइट के लिए फोकस ये होना चाहिए दैट यू शुड ईट द हेल्दी डाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जो लोग घर पे हैं, नेचुरली दे वुड बी गेटिंग गुड डाइट, बट स्टूडेंट्स स्टेइंग इन दिल्ली, मे बी गेटिंग टिफिन्स, या उनका अपना कुक सिस्टम है या उनका अपना सिस्टम है खाना बनाने का, दे आर डेफिनेटली नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट प्लान. तो उनके लिए ज़्यादा जरूरी है दैट दे फॉलो द डाइट प्लान. And hence I would expect some very basic things. For example,
फोकस आप सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लीजिए, एक्सेप्ट इफ यू आर इन कंटेनमेंट जोन, नॉर्मल जोन में तो आप लीजिए. At the same time, also focus on focus on protein items. It is good for your mind, for body. Protein is helps building mind. Protein खाइए, वेज नॉन वेज के ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे. मे यू कैन हैव एग्स और यू कैन हैव पल्सेस, एनीथिंग. ओके, सो आप प्रोटीन का इंटेक लीजिए, वाइटामिन्स, मिनरल्स का इंटेक लीजिए. एट द सेम टाइम अवॉइड बिंज ईटिंग. बिंज ईटिंग लाइक जो जंक फूड है, बहुत सारे लोग मैगी खाते हैं, नमकीन बिस्किट बहुत सारा स्टॉक रखते हैं, एंड दे ईट लॉट ऑफ दैट. I do not, again I would say कि मत खाइए तो आप नहीं खाएंगे, ऐसा तो है नहीं, but I would expect that you limit on that area. Cold drinks could be another area which you should maybe avoid, or you can have a little in a controlled manner. So I'm not against any kind of prohibition, but I do believe that anything should be regulated. So here diet should be focused on ensuring कि आपका ये healthy एक diet रहे, because this healthy diet will ensure continuity in your study process. Many times बीच में सीजन चेंज हो रहा था, कहीं बारिश भी हुई थी, एंड हेंस सम ऑफ माई स्टूडेंट्स गॉट अनवेल. उनको सीजनल नॉर्मल तरीके से कोल्ड या फ्लू हुआ, एंड दे कॉल्ड मी एंड दे वर इन टेंशन, बिकॉज सडनली दे फेल्ट कि अरे हमें कुछ हो तो नहीं गया है, बिकॉज जो करंट पैंडमिक इज ऑलमोस्ट सिमिलर आपके सिम्टम्स हैं पे. तो यहाँ पर यू विल डेफिनेटली स्टार्ट फेसिंग मेंटली यू विल फील वेरी बैड, एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो बेसिक डाइट. सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ने वाली है या बढ़ रही है, सो यू फोकस ऑन बेसिक थिंग्स एंड मेक श्योर योर हेल्थ इज देयर. तो हेल्थ पे अपने ध्यान दीजिए, और वो एक बहुत प्राइम फोकस है. इफ अगर आप नॉन एकेडमिक मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, देन ओनली आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी. अदरवाइज यू माइट गेट अनवेल, बाहर जाना, डॉक्टर के यहाँ जाना, ये सब अवॉइड करने वाला जो सिचुएशन हमें होना चाहिए. सो वी शुड कंप्लीटली अवॉइड दीज एरियाज. वी शुड फोकस ऑन हेल्दी डाइट, एंड आई वुड से कि थोड़ा अपने रूटीन को नॉर्मल से चेंज करिए, मिक्स इट विद लॉट ऑफ थिंग्स. अगेन, नंबर ऑफ आवर्स, हाउ मच आवर्स you should be studying. There is no hard and fast rule for studying, but I would suggest that anything 8 hours, average 8 hours study, 7 to 8 hours is more than sufficient. आप 8 hours अगर आप क्लॉक कर रहे हो, गुड क्वालिटेटिव 8 hours. आप 24 आवर में आपको सिर्फ 1/3 टाइम अपने पढ़ाई पे देना है. इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट गुड 8 hours, that is more than sufficient, because that will bring continuity. Again, some students feel that 8 hours होना ही चाहिए. One day it might be 9 hours also, other day it could be 7 hours as well. So ये mechanical process नहीं है. It's because preparation is also academic, non-academic. Mentally जो है एक process चलता रहता है. तो you have to handle that mental aspect as well. So mental composure is the key. The degree of equanimity that you might have with your routine, your process, your study, your sleep schedule, your bodily things will definitely bring a lot of efficiency to the process. So the idea is to bring efficiency. The idea is to ensure that we are able to maintain the momentum that we have. 7-8 hours effective, good quality education is more than sufficient for now. Okay, that is what I would expect. Now coming to the strategy. Now we discussed about the concern. Now we'll discuss about the strategy. What should be doing ahead? So far till maybe few days back, the only approach was that you are preparing for prelims. आप prelims के पूरा आपका focus था. Now I would say you can change the routine. Now I follow a very basic rule, and here I would say that you can bring a routine where you can focus on a new rule called 60-40 or 70-30. 60-40 मतलब 60% time you focus on prelims, 40% time you can focus on the mains, or 70% time you focus on prelims, 30% time you focus on the mains. तो prelims पे आज भी वेटेज ज़्यादा होना चाहिए, 50 to 60% टाइम. 30-40% टाइम कैन बी फॉर द मेन्स एरिया. नाउ मेन्स विल बी अगेन मल्टीपल एरियाज. मेन्स में द एक्स्ट्रा जीएस सिलेबस विच इज ऑलरेडी देयर, एक तो वो हो सकता है. द सेकेंड एरिया कुड बी एसे विच इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट. द थर्ड एरिया इज द एथिक्स पेपर, एंड द फोर्थ एरिया इज ऑप्शनल. सो वी हैव 3-4 एरियाज इन द मेन्स पार्ट जो कि रहेगा. नाउ वेयर शुड यू स्टार्ट एंड हाउ शुड यू स्टार्ट? Again, the focus here would be 2 things. Now as aspirants are preparing from last 1 year, so I believe that mains का भी syllabus आपने काफी कुछ किया होगा. So here one approach would be that you pick a new subject और उसको पूरा पढ़िए. But I would suggest that you mix 2 things. आप नया सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करिए या नया बुक या नया एरिया पढ़ने की कोशिश करिए, that is completely okay. But at the same time focus on the parallel revision of the previous mains area. What you can choose at first level. Choose those subjects which have a commonality with the prelims syllabus. For example, polity governance, for example, economics, for example, geography or maybe history. तो इसके जो मेंस का पार्ट आप करोगे, so ये मेंस और प्रीलिम्स
काफी जुड़ा हुआ रहता है. तो देयर इज अ फीलिंग दैट यू प्रिपेयरिंग फॉर मेंस बट प्रीलिम्स वाला एरिया भी सेम सब्जेक्ट में है. Some student might feel that I want to do a new area. You can do a new area. You can go for internal security. You can go for international relations. You can go for ethics if you want to. But again, that would depend on your strategy. मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते भी हैं तो पैरेलल रिवीजन भी जरूर करते रहिएगा. इन रिवीजन यू कैन फॉलो अ 30-40% रूल, जहां पे आप 30% टाइम अपना मेंस का रिवीजन करोगे एंड रेस्ट टाइम में आप मेंस के नए एरियाज या नए बुक्स या नया सब्जेक्ट पढ़ोगे. अगेन रिमेंबर, दिस प्लान शुड बी ओनली फॉर 1 month. ये 1 month का प्लान होगा. डोंट मेक अ प्लान फॉर 3 months. सो व्हेन यू आर पिकिंग अ न्यू सब्जेक्ट, मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी में आप कोई नया एरिया उठा रहे हो और यू आर पिकिंग अ न्यू बुक जो आपने पढ़ना था लेकिन आप पढ़ नहीं पाए हो, और इन अ न्यू बुक यू आर रीडिंग फ्यू चैप्टर्स. हियर ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव अ मंथली प्लान और आप उतना ही पढ़िए जितना आपको लगता है मंथ भर में कंप्लीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम दैट यू आर गिविंग टू योर. यू हैव ईयर मार्क्ड अ टाइम फॉर ए प्रिपरेशन फॉर मेंस, तो वहां पे उतना टाइम आप दे पा रहे हो, ये आपका फोकस होना चाहिए. सो यू ऑलवेज, जो मेंस का आपका जो फोकस होगा वो रिविजन पे भी होगा एंड द न्यू एरियाज. एंड इन न्यू एरियाज स्टडी और फॉलो ओनली फ्यू सोर्सेज. 1-2 बुक फॉलो करिए, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए. डोंट गो फॉर मे बी डिटेल्ड रीडिंग और डोंट गो फॉर रीडिंग जहां पे मल्टीपल बुक्स इन्वॉल्व हो रही हैं सेम सब्जेक्ट के लिए. ऐसा कुछ मत करिएगा. दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट. Okay, so that is in the mains part. Mains part में again you have optional also. So what you can do here is that you can divide your time. जैसे 6 days आप स्टडी करते हो तो 3 days GS and 3 days optional कर सकते हो. Again you can day alternate days कर सकते हो या at a stretch कर सकते हो, whatever suits you. एक दिन में GS और मेंस का GS एंड ऑप्शनल दोनों साथ साथ करेंगे तो मुश्किल होगा, बिकॉज लेट्स से यू हैव 3, आपके पास 3-3.5 घंटा टाइम अपने मेंस के लिए दिया हुआ है, तो दोनों में आपको लगेगा कि 1 घंटे में आप ऑप्शन के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो. सो आई वुड सजेस्ट दैट 1 day ओनली स्टडी ऑप्शनल, सेकंड डे स्टडी ओनली GS. ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इन एरियाज पे हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है, जस्ट ओके. सो दैट इज व्हाट विल बी फोकसिंग. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जो मेंस वाला हमारा जो एरिया है ऑप्शनल वाला, ऑप्शनल और जीएस जो भी आप साथ साथ पढ़ते हो, आपका पैरेलल ये फोकस होना चाहिए कि ऑप्शनल के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस को जरूर देखिए. ऑलवेज फोकस ऑन प्रीवियस ईयर सिलेबस एंड ऑलवेज फोकस ऑन द सिलेबस. आप सिलेबस को पैरेलली देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए एंड बी रेगुलर ऑन दैट. आप ऑप्शनल कुछ भी पढ़ेंगे तो उसको प्रीवियस ईयर सिलेबस के साथ अगर आप नहीं देख रहे हो या जीएस को नहीं देख रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. सो बिकॉज दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड दैट जो मैं पढ़ रहा हूँ वो रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है. नेक्स्ट इज एसे. Essay, I would expect at least one essay every 10 days और in a week आपको लिखना चाहिए. That is what I would suggest. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि you should follow answer writing. हर alternate day पे आंसर राइटिंग एटलीस्ट 1 hour आप डिवोट करिए. सो मेंस के लिए आपने मान लीजिए 3 घंटा दिया है, so in 2 days 6 hours would be there, so 1 hour should be answer writing. In answer writing you do it at a stretch, at least आधे 45 minutes to 1 hour answer writing करिए. You can pick previous year papers या फिर आपके पास क्वेश्चंस है मेंस के तो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. So that is the key. आंसर राइटिंग करना, essay करना, it should go parallel. Don't wait that this will happen tomorrow or probably down the line. तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जो अगला जो हमारा एस्पेक्ट है, जो फोकस है, वो ये होगा कि हम प्रीलिम्स पे अब चलते हैं कि हम प्रीलिम्स में क्या करेंगे. नाउ एज आई मेंशन्ड, योर 60% ऑफ टाइम या 70% टाइम आज भी प्रीलिम्स पे जाना चाहिए. इन प्रीलिम्स कंप्लीटली आई बिलीव इन 3 hour. 3 hour इज रिविजन रिविजन रिविजन. हाउएवर रिविजन करने के बाद भी देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग दैट इन सम एरियाज रिविजन जो है आपका होने के बावजूद कुछ सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं या अच्छे से तैयार नहीं हुए. तो यहाँ आपका फोकस क्या होना चाहिए? हियर you can devote half of your time on entirely on revision. Now revision will be subjects, revision will be previous year questions, revision will be a mock test, revision will be a topic wise test और sectional test या module test जो भी आपने दिए हुए हैं उनका revision पैरेलली चलता रहना चाहिए. and the new prelims, जो भी आप नया prelims का एरिया पिक करना चाहते हो, a new book, a new area, या फिर आपने कोई एरिया जो आपका weak areas है, identify your weak areas. For example, most of the aspirants जिनको जहाँ दिक्कत आती है वो आता है art and culture. They face problems in in the areas of geography, environment, ecology, science and tech. You be on thorough on those areas. वहाँ पे अगर कोई बुक रह गई है, कोई NCERTs रह गई है, आप उसको कवर कर लीजिए. Go through, always map with the previous year question papers.
ठीक है, उन पर और अपने थरोनेस लाइए। वहां पे अगर आप एमसीक्यूज या मॉक्स लगा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। यू कैन गिव सेक्शनल टेस्ट एंड आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी आपका वीक है, सो यू फोकस ऑन उसके बेसिक बुक्स फिर से देखिए, सी वेयर आर द गैप्स इन दैट टॉपिक, उसको कंप्लीट कर लिए। कॉम्प्लीमेंट विद एमसीक्यूज, सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस का मैपिंग हमेशा बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड इन रिस्पेक्ट टू अ डिफरेंट टॉपिक। तो ये हमारा जो अगला एस्पेक्ट है उस पर हमारा यहाँ का फोकस होना चाहिए। दैट मीन्स यू आइडेंटिफाई द वीक सब्जेक्ट एंड उस पर आप फोकस करिए, और उसमें जो आपके सजेस्टेड रीडिंग्स थी जिनको आपने प्लान किया होता पहले करने का, उनको आप पैरेलल कर सकते हो। बट रिमेंबर, रिविजन ऑफ द अदर एरिया शुड गो ऑन पैरेलल, वो साथ साथ चलना चाहिए, दैट शुड नॉट स्टॉप। अदरवाइज आप एक काम, आपको ऐसा लगेगा कि आप नया तो कर रहे हो बट पुराना जो है छूटता चला जा रहा है, रिविजन जो है इम्पैक्ट हो रहा है। सो इट इज नॉट ईजी, एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज आप एक तरफ से मेंस की पढ़ाई कर रहे हो, उसमें भी रिवीजन कर रहे हो, उसके भी नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, देन प्रीलिम्स में भी आप रिवीजन कर रहे हो, और प्रीलिम्स में जो एरियाज या गैप एरियाज है उन पर आप काम कर रहे हो। प्रिपरेशन हमेशा जो है किसी भी एस्पिरेंट की होती है, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। ऑलवेज एस्पिरेंट विल फील कि यहाँ या इस एरिया में गैप रह जाता है। सो you always know that where are the gap areas and hence your objective should be कि उन gap areas को आप address करिए। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए कि हम कैसे उन गैप एरियाज को अच्छे से या वीक एरियाज को हम अच्छे से कंप्लीट करें। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट विल नॉट हैपन टुमारो। याद रखिएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। दिस टाइम इज समथिंग दैट यू कैन यूटिलाइज इट, एंड एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन। इट इज़ यू द फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो इस सिचुएशन को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। अच्छा, एक चीज़ और, वन मोर थिंग आई फाउंड एस्पिरेंट दैट एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, बट मॉक्स देना या टेस्ट क्वेश्चन देना ये कम दे करते हैं। दैट शुड नॉट बी द प्रैक्टिस। यू शुड गिव एज मेनी मॉक्स, यू शुड ट्राई एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, यू शुड ट्राई ऑन रेगुलर बेसिस की चीज़ें जो है वर्क करें। अगर आप मॉक्स दे रहे हो, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, रीड द बिटवीन द लाइन्स, रीड द क्वेश्चन अगेन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, ऑप्शनल का हो या ऐसे का हो, यू फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। इनफैक्ट मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा दैट आप आज भी 25-30 मिनट्स यू कैन डिवोट इंटायरली ऑन रीडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप उसको देखते रहिए एंड सी दैट आप, लेट्स से यू रीडिंग अ टॉपिक, आपने उस टॉपिक को कवर कर लिया, सो सी वेयर यू स्टैंड, कैन यू राइट दिस आंसर मेंस में, कैन यू अटेम्प्ट दिस ऐसे, ट्राई टू मैप दोज एरियाज। आपको लगेगा कि नहीं आई हैव अ गुड कंफर्ट, डू यू नो दीज टॉपिक्स। आपने एक ऐसे देखा जो मैल न्यूट्रिशन पे है या फिर हेल्दी एजुकेशन पे है, ट्राई टू कोलेट योर थॉट प्रोसेस, जस्ट थिंक कैन यू राइट ऐसे ऑन दिस टॉपिक और नॉट, एंड इफ यू कैन राइट व्हाट वुड बी द कंटेंट एट अ बेसिक फ्लो। सोचिए, सी प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग बुक्स एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, ऑल्सो अबाउट mental development of things, thought process development, understanding the background aspect of preparation। तो हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन से पेपर पढ़ रहे हैं, बट टेक अ वॉक, थिंक अबाउट वेयर आर द गैप एरियाज, और उस पर आप पैरेलली काम करिए। तो एज एन एस्पिरेंट वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द एरियाज जो प्रिपरेशन के गैप में जो है आपको नजर आते हैं। नाउ कमिंग टू द सिचुएशन ओवरऑल मैक्रो लेवल पे, देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज कंफ्यूजन। Can you change it? You cannot. Can you do anything? We cannot. I'm sitting in Delhi in a red zone. I can barely move out. If I want, even if I want, I can just take in my essentials. मैं बाहर जाके essentials सामान ले सकता हूँ. I cannot move around. I cannot roam around. We cannot do normal work. You cannot. But आपका तो एस्पिरेंट हो, आपका एस्पिरेंट तो चीज़ें डिफाइंड है। आपको एग्जाम देना है, आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको रोज क्वेश्चन लगाने हैं, आपको एमसीक्यूज ट्राई करना है, आपको रिवीजन करना है। फॉर यू नथिंग इज चेंजिंग ऑन ग्राउंड। सो जो ये जो पूरा ऑलमोस्ट 12th मई के बाद जब से हमारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए एंड वी कुड नॉट रन द क्लासेस, हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 50 days हैव पास्ड। शुरू में एक फियर था कि शायद कुछ होगा या प्रॉब्लम होगी, बट नाउ आई बिलीव एक्सेप्टेंस शुड कम। सो एक्सेप्ट वॉट एवर इज देयर, एक्सेप्ट कर लीजिए ये ऐसा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट द इनविटेबल, what will happen tomorrow we don't know, and hence moment the acceptance comes in you will feel better. The second part is after acceptance करने के बाद tell yourself that I have only one thing in my hand, that is I have to keep doing, I have to keep trying what I'm doing. So make sure this is taken forward. ये जर्नी जो है अपने आप में यूनिक होती है, ये जर्नी आपको एक अलग
experience दे रही है. I'm saying preparation is academic as well as non-academic. On both aspects you have to work. Similarly, I will end this video with a small quote, and that quote is, God grant me serenity to accept the things I cannot change. God grant me serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. तो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, जो मैं नहीं कर सकता हूँ I would not worry about that. I should focus my work. So that is all for everybody. Thank you very much. I'll be coming with a series of videos on different issues related to prelims. Constitutional bodies होगा, different topics होगा. So I'll be covering series of videos in the coming weeks. So we'll be meeting here on a more frequent and regular basis. So thank you very much for your time and patience, and take care. Best of luck. Stay healthy, take care of your health. That is extremely important, and make sure that journey, this time, this investment is continued. Bye.